गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करेंगे टारगेटिंग की वैल्यू के बारे में। और बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग गलत उपयोग करते हैं इसका और कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते इसको, और उसको समझने में मैं आपकी सहायता करने वाला हूँ आज। देखिए, मेरी बात का स्मरण रखिए कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आज से 4 साल पहले मैंने कई बुक्स में पढ़ा। इसको हम फॉलोअप्स भी बोलते हैं, रीटारगेटिंग को। व्हाट इज़ रीटारगेटिंग? मतलब आप जैसे कोई आपकी वेबसाइट पे आया या आपका कोई पूरा वीडियो देखा एड्स के थ्रू, तो हुआ क्या कि नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बाय राइट अवे। ओनली 1 to 2% people are going to buy right now. That is the major thing that you have to understand, is that only 1 to 2% people are going to buy right now. Okay. Okay, cool. Let me write this. Remaining 40 to 45% people will going to be ready to buy in next 30 to 45 minutes, and this is not my experience. If you type Frank Kern on YouTube, you will understand, and you will watch the videos, you will understand what is the where I am coming from. So once a person has hit it your website, he will bounce away, do his own stuff which he is doing. He's not going to buy. Some people will going to buy. That's how we break even the money. But a lot of people will check out, initiate the checkout, and they'll see the price, even if it is 10 rupees, 20 rupees, 100 rupees, 250 rupees, 499, whatever. Never go beyond 499. That is what I have believed in. Because your ad cost will be covered up if you have a package of 250 rupees. So more on that later. So a person comes to your website, hits your website, checks out, and fuck off. What would you do? You retarget. So this is where the pixel comes in. Okay? And Google Tag Manager and Google Analytics. You have to learn all these things, techie stuff. These all things are techie stuff. Like Facebook Ads Manager कैसे चलाएं, Google Ads Analytics कैसे चलाएं। थोड़ा थोड़ा आप अगर सर्च करोगे YouTube पे, लाखों करोड़ों वीडियोस हैं इसके बारे में, वो आपको सीख जाएगा। अब आप कहोगे सर मन नहीं करता, तो क्योंकि आपके पास यू हेट मनी, दैट इज़ आपको मन नहीं करता। कहीं ना कहीं आपके अभी कोई इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके जीवन में, है ना। तो जब भी मैं ये सब बातें करता हूँ ना, तो मैं सीधा सेल्फ डेवलपमेंट में चला जाता हूँ बातें करते करते। बिकॉज लोग इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछते हैं मेरे से कि भाई अच्छा ठीक है ये करना है, सर मन नहीं कर रहा। अरे तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है, सॉरी फॉर दैट। सो a person, let's take the previous business, which is fatty liver, olive oil or mustard oil, whatever, cold pressed oils. Let's say you are selling cold pressed oils and fatty liver is the main target criteria. So in the last podcast I have told you that mustard oil is the medium to get something, or the cold pressed oil is the medium to get something. It is not the end goal, it is the medium, it is a means. It is not the target, it is the means of the target. That has to be absolutely well understood. So that's what yeah. Okay, so now let me take that same example. So this is this fatty liver, ठीक है। अब आप कहोगे कि जैसे कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको बताया था कि फैटी लीवर जो है वो आपका फैटी लीवर ऑडियंस इज योर टारगेट, ड्रीम कस्टमर। पर आप बेच क्या रहे हो? आप ऑयल बेच रहे हो, तो आप हेल्थ बेच रहे हो, आप फैटी लीवर नहीं बेच रहे हो, ठीक है। अब आपने फैटी लीवर के ऊपर एक्सपर्ट हो, आप न्यूट्रिशनिस्ट, आपने किया, आपने कोचिंग करी, जो भी किया।
अब लेट्स से सेम एग्जांपल लेते हैं, कोई आया आपकी वेबसाइट पे और आप एक कुछ कोर्स बेच रहे हो या पीडीएफ बेच रहे हो या कुछ भी बेच रहे हो, एंड पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. So what you do is you start retargeting the person. You retargeting the person. The pixel will tell you that these many people have come to the website. So if you select the sales campaign on Facebook Ads Manager, it will automatically do that stuff for you, because right now the AI is very advanced on YouTube, Facebook Ads and YouTube Ads as well. Especially Facebook Ads, they are able to find very specific people. Okay, so person comes on the website. Now the person is targeted with many ads through retargeting marketing. So what you do is you create a separate campaign and make custom audience, retarget those person. With what ads you're going to retarget? That is the main question. That is the main bloody question. So there are 3 types of logic, 3 types of clauses. जब कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आप उसको इमोशनल आपको उससे हिट करोगे. फिर जब बंदा वेबसाइट छोड़ देगा तो आप उसको लॉजिक से हिट करोगे, और लास्ट में आप अर्जेंसी, फियर से हिट करोगे. तो ये 3 टाइप के ऐड आपको बनाने हैं. सबसे पहला ऐड बनाना है कि कोई आपकी वेबसाइट पे आया, आपके जो सेल्स लेटर है उसमें जो वीडियो है उसमें सबसे पहली जो बात होगी वो आपकी स्टोरी होगी. वो स्टोरी क्या होगी? हेलो, माय नेम इज़ फलाना, लेट्स से Shweta, and last 3 years back I had a grade 3 fatty liver. Boom. And I was having severe liver pain. I used to vomit blood because of this my habit of alcohol from past 10 years. I developed fatty liver, and doctors told that आप अपनी डाइट को सही करिए, otherwise there will be a lot of problem and you might die also. You get liver failure or cirrhosis if you go to the grade 4. So you talk about what your own story, how you earned or how you learned that thing. And what you have earned, I have earned. What is your transformation? What happened? So 3 years back I had fatty liver. Doctors told कि आप कुछ कर लो, नहीं तो आप भगवान ही आपका कुछ करेगा. I used to vomit blood. Blah 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 blah. All the pain, hit the pains. Blah 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 blah. And then tell कि मुझे ये मिला. क्या मिला? कि मुझे एक जड़ पे जाना था, और मैं इस पे इन्वेस्टिगेट करी, रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि जो ऑयल हम यूज़ करते हैं उसमें एक कंटेंट होता है सैचुरेटेड फैट, है ना. और अगर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है आपके ऑयल में तो वो आपके लीवर को ग्रीसी करता है. दैट वॉज वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट आई चेंज्ड इन माई डाइट. एंड देन आई डिड एक्सरसाइज. I changed my diet. I stopped eating sugar. I stopped eating this. ठीक है? I stopped taking alcohol. And you know what? This oil, which is cold pressed and is extremely low in saturated fat and high in MUFA and PUFA, changed my liver. And today I'm standing right in front of you, extremely healthy, not overweight, in the best physique of my life. And when I became healthy again, I realized I have to help people who are having this problem, right? So I discovered the entire phenomena, or the entire easiest phenomena and the best possible ways to reduce the fatty liver. And so here I am sharing it with you. This was my old picture. This was my ultrasound picture. See, I have 20 mm fatty liver, and this is my current picture. I have 13 mm
healthy liver. You show the sizes of the ultrasound on the sales letter. Now what happens is, people watch this, people like you because they know that you have gone through a pain and you have gone through a lot, so you are an expert in that thing. So the reason why we tell stories is that nobody will believe you if you just come out and say, okay, I am an expert in a fatty liver, or buy from me. I am selling oil, buy from me. Nobody is going to believe in this because people like to come on conclusion themselves. They don't like somebody stuffing the facts down their throat. They like to swallow themselves. Okay, so that is the main thing. So that is why we tell a story. So they believe themselves. They come on the conclusion themselves. They are rewriting the stories themselves for them. So that's what the sales letter is all about. The number one thing is emotions. You hit on the emotions. Number two thing is you hit on the logic. Okay, I want to buy this, but this after but के बाद जो भी आता है ना, वो बुद्धि बोल रही है. So oh my God, I want to have this life this girl has, this Shweta has. I want to have that liver. I want to reduce my liver. I want to be healthy. I really want to get out of this pain. And this is all man. Then there is buddhi. But अब वो बट में बहुत कुछ आ जाएगा. बुद्धि बोलती है कि नहीं पैसे मत खर्च करो, मुझे डाउट हो रहा है ना. और डाउट कुछ भी हो सकता है कि क्या पता फ्रॉड है, क्या पता नहीं है, क्या पता पैसे तो नहीं खा जाएगी, क्या पता ये वो एंड ऑल दैट. सो व्हाट यू डू इज फॉर ऑल लाइक एवरीथिंग मार्केटर्स हैव डिसाइडेड समथिंग. सो लेट्स से कि कोई पैसा दे रहा है 250 रुपये आपको, और वो उसको डर लग रहा है कि आपको जानता तो है नहीं आपको, तो आप उसको रिवर्स गारंटी दे दो. उससे बोलो कि मैं आपको 30 डेज गारंटी दे रही हूँ, आप मेरा ये कोर्स लीजिए 250 रुपये का, या ये ऑयल लीजिए. अगर आपको ऑयल समझ नहीं आता आप रिटर्न कर दीजिएगा. सो दिस हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम like last 10 to 15 years. Everybody sells the book, sells the courses out front, at the front end, and they have this money back guarantee. Now आप सोचो कि यार सच में लोग ऐसा अब्यूज़ तो नहीं करेंगे? करते हैं. 100 में से 1-2% आपके रिफंड आएंगे. लेकिन अगर 100 में से 10% रिफंड आ रहा है, 20% रिफंड आ रहा है, 25% रिफंड आ रहा है, so people are not satisfied. So nobody abuses the guarantee. ओके, अगर ये अब्यूज़ करता ना गारंटी को कोई, तो व्हाट हैपन्स इज कि आज तक कोई मार्केटर ऐसा करता ही नहीं. बट पीपल आर रियली नाइस. अगर लोग सच में अच्छे हैं, अगर आप उनको कुछ दोगे और उनको सच में लगेगा कि नहीं मुझे वैल्यू मिली है, नहीं ये आदमी कुछ कर रहा है मेरे लिए, ये औरत मेरे लिए कुछ कर रही है, ये कुछ है बंदा, इसने मेरे को जो दिया है वो बहुत वैल्यूएबल है, तो वो आदमी सच में वापस नहीं करेगा. ठीक है. So a person hits your website, you tell them your story. The story will be how did you learn or earn it? What is the origin story of the particular idea, of the particular solution? The origin story of the solution, whatever solution is. Maybe it is a course, maybe it is a health program, maybe it is a diet program, exercise program, it is a oil, it is a e-commerce product. Why did you develop the product? If it is a course, why the course? और कोर्स के अंदर जो जिस स्ट्रैटेजी से आप लेके गए हो लोगों को, वो स्ट्रैटेजी बतानी है आपको. सो फॉर मी आई एम अ वोकल कोच. ओके, सो लेट्स से इफ आई एम सेलिंग स्पिरिचुअलिटी टू समबडी, सो व्हाट विल आई टेल? सबसे पहले तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो क्यों लोग खरीदते हैं, क्यों लोग आते हैं उसमें, करते क्यों. तो अगर हमें यही क्लियर नहीं है तो कई लोगों का जवाब बहुत अनाप शनाप जवाब आता है. कुछ लोग आते हैं चक्रा मेडिटेशन के लिए, कुछ लोग आते हैं कुंडलिनी के लिए, कुछ लोग आते हैं इसके लिए उसके लिए, पता नहीं क्या क्या मेडिटेशन और वो व्हाटएवर. सो पीपल से क्या मेडिटेशन करने आए हैं? नहीं, दे वांट पीस. अल्टीमेटली जो लोग पीस के लिए आए हैं
वो आपका ड्रीम टारगेट है। अच्छा, कुछ लोग जादुई शक्तियाँ, सुपर नेचुरल पावर पाने के लिए आते हैं मेडिटेशन में, तो वो आपका ड्रीम टारगेट नहीं है। अगर आपका वो है तो आप वो भी कर सकते हो, बट दैट विल बी अ फ्रॉड। So I have to be absolutely clear, because if I'm not clear about what spirituality, why people are coming to spirituality, my messages on the website or the messages on the videos will not be clear. So here is this message. अगर आपको लगता है ये मेरा एड है, so 3, 2, 1 go, क्या आप कभी जिंदगी में ऐसा सोच पाते हैं, या कभी आप जिंदगी में ऐसा सोचा है आपने, या आपके मन में आया है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे सच्चा प्यार मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे पैसा मिल गया, मुझे शोहरत मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन आपके मन में शांति नहीं है। जो भी चीज़ें आप पाना चाहते थे, जॉब कर लिया, लेकिन आपके मन में शांति नहीं है, आपको वो नहीं मिला, आपके अंदर एक खोखलापन है। क्या आपको ऐसा लगता है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ हमें लगता है। तो वही लोग आएंगे जिनको ये लगता है। अगर आप बोलोगे आओ मेडिटेशन करो, तो पता नहीं कौन कौन आ जाएगा। ठीक है, तो आपके मैसेजेस क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो वही लोग क्लिक करेंगे वेबसाइट पे जो आता है। अब जब वो क्लिक करेंगे तो उनके बेस पे हम एक ऑडियंस बनाएंगे। अब वो ऑडियंस अच्छी ऑडियंस होगी, रादर देन कि फालतू की ऑडियंस, है ना, कि कोई चक्रा के लिए आ रहा, कोई पता नहीं को क्या क्या करने आ रहा, कोई आई हैव नो आइडिया, राइट। सो देन आई विल टेल यू दैट मुझे भी ऐसा ही लगता था। आज से 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, बड़ा बड़ा कहानी बताना चालू कर दिया मैंने। और फिर मुझे ये डिस्कवर हुआ। वो क्या डिस्कवर रखता है? कुछ भी, कोई लेट्स से इनर साउंड मेडिटेशन है, या फिर आत्मज्ञान है ना। सो दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर द पीस। सो फॉर मी, इफ समबडी really wants to be peaceful, there are a lot of things that are required, which can be sold. And literally, if I start selling spirituality, I'm telling you guys, one of the best thing that can happen to me, if I sell spirituality, one of the best thing that can happen is I'll be really good in that, because I have a lot at my hand. So in future I'm planning to sell spirituality as well, because the problem is that the problem is that okay, I'll not talk about the problem. So retargeting. So follow up, that is the main essence of the show, that we have to follow up, right? We have to follow up no matter what. So if you follow up, how would you follow up? Once a person has learned your story, he understands your concept altogether, you follow up with them through retargeting ads, and the ads will act on logic, right? Like, why should I buy from you? बट आपको ये केस स्टडी देखो, बट ये मेरा अल्ट्रासाउंड देखो, बट ये बिफोर एंड आफ्टर देखो। सो ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं वो एक्ट करेंगी आपकी इससे। होप इट आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। एंड देन यू क्रिएट अर्जेंसी, you create some ads which create urgency, like it is going away. So this is how you are going to target the entire fatty liver business. Once the front end is built, you will get some leads. Let's say you got 500 leads. You mail them, you see how many people are opening this one. So if let's say 30% people are opening, so out of 500, how many people will be there? 125. That is, I think, 25%. Let's say 130 people. So 130 people जो है वो 500 लोगों में आपका ईमेल खोल रहे हैं। तो कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं वेबिनार के लिए, ये भी आपको समझना है ना। कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं?
तो अगर रजिस्ट्रेशन आपके वेबिनार का 500 लोगों में आ रहा है, 500 लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो जो शो अप रेट होगा वो 100 से 150 होगा, ये बात याद रखना। तो अब आप उसको आप शो अप रेट आप वेबिनार पे उनको लेके जाओगे। तो हेयर इज वेयर द मनी कम्स इन, एंड दिस इज वेयर आई एम राइट नाउ। आई हैव बिल्ड अ प्रॉपर फ्रंट एंड funnel. We are going to start with webinar funnel in the very soon. So this is the concept. So here it goes. 500 people took your front end offer. Okay? And these are all buyers. Please remember this. The most precious amount of people. Because not everybody buys. Everybody wants free stuff. Very less people are investing on themselves. Why? Because they don't have money, first of all. So don't sell to broke people. Most irritating people are broke people. These splendor guys. Don't sell to these people because these people are like खटमल. I'm not telling कि splendor guys are like खटमल. मेरे खुद के भी घर में बहुत सारे लोग स्प्लेंडर चलाते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने पैसा दे दिया ना, तो वो पैसा उधार लेके देते हैं। और भाई वो पहली चीज़ तो पैसा देते ही नहीं है, वो पैसा उधारी का देते हैं। और वो उधारी का पैसा जो लेके आएगा भैया, वो पता नहीं उसको क्या चाहिए। उसको तो उसने 50,000 दिया है तो वो उसके लिए 50 लाख की वैल्यू चाहिए उसको। 50 लाख की वैल्यू तो नहीं मिलेगी ना। 5 लाख की वैल्यू, 5 लाख खर्चोगे तब 50 लाख की देंगे। अगर 50,000 खर्चोगे तो 5 लाख की देंगे। तो इमेजिन कि आपने रसल ब्रंसन की बुक खरीदी 250 रुपये की, और आप रसल ब्रंसन को ईमेल कर रहे हो कि मैं आपकी 250 रुपये की बुक खरीद चुका हूं, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। कई लोग कर लेते हैं ग्रो, बट आप उतने स्मार्ट नहीं हो। अगर आप उतने स्मार्ट होते तो ग्रो कर चुके होते। बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं खुद ही नहीं कर पाया। मैं तो 2020 से पढ़ रहा हूं .com सीक्रेट्स। ऐसे ही अगर हो गया होता, बुक पढ़ते ही अगर हो जाता, तो आज तो होता ही नहीं। तो और ऊपर जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो 7,000 चार्ज करते हैं रसल ब्रंसन, फिर वो 25,000 चार्ज करते हैं, फिर 50 लाख चार्ज करते हैं। ऐसे करते करते उनका बहुत सारा प्रोग्राम है। तो ये महाशय क्या कहते हैं कि 250 रुपये की बुक हमने खरीदी है तो हमारा 2.5 लाख का बिजनेस बन जाएगा। आई एम सॉरी, यू आर नॉट माई ड्रीम कस्टमर। वन ऑफ द मोस्ट घटिया कस्टमर्स आर गरीब पीपल। दीज पीपल लिटरली बॉयल माई ब्लड, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। ये मेरे साथ हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक कहानी बताऊँगा आपको। आज से 4 साल पहले की बात है। मैं FL स्टूडियो प्रोग्राम बेच रहा था अपना। कुछ लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए। मेरे पास कॉल आया, 6,000 रुपये का था। तो बोलते हैं सर हमें FL स्टूडियो सीखना था। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 6,000 रुपये दे दीजिए, 3 महीने का कोर्स है। अब वो 3 महीने के कोर्स में उन्होंने सुन के उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करना चाहता हूँ। ठीक है भैया, किया। और उनको मैंने सॉफ्टवेयर दिया कहीं जैसे थे अरेंज करके। वो सॉफ्टवेयर 20,000 का था। मैंने उनको अरेंज करके एक सॉफ्टवेयर दिया कहीं से। उसका भी बाद में मेरे को इल्ज़ाम दिया कि भाई टॉरेंट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके पार्सिंग बेचता है। ठीक है, आप सुनना ध्यान से। चलो कोई बात नहीं, हम गलत हैं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी भी कहानी सुनिए। इनको क्या किया, इनके कुछ ऐसे बाकी सब मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी लोग आए थे। कुछ ऐसे 4-5 लोग थे जिन्होंने ये न्यूसेंस क्रिएट किया। ग्रुप में ग्रुपिंग हुई। ग्रुप रखता था मैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे लोग ग्रुप रखता था। तो मैं इनको काम देता था। मैंने उनसे पहले ही बोल रखा था मैं आपको ये वीडियो कोर्स दूंगा। ठीक है, उनको वीडियो कोर्स मिला, उनको सॉफ्टवेयर मिला। कितने में? 6,000 रुपये में। सुनना ध्यान से। सॉफ्टवेयर जो टॉरेंट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, वो मैंने टॉरेंट से निकलवाया और उसको डाउनलोड करवाया। चलो ठीक है। बाद में ये लोग बोलते हैं आपने क्रैक सॉफ्टवेयर बेचा था। मैंने बंद भी कर दिया बिजनेस बाद में, इसी चक्कर में, क्योंकि भाई ये लोग क्रैक सॉफ्टवेयर सोच के आते थे। इनको लगता सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, हमें लगता सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो ये हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन हैप्पी नहीं हुए। इन्होंने बाद में जब एक गुस्सा हुए मेरे से, ये लोग आक्रोश में, इन्होंने बोला कि ये तो क्रैक सॉफ्टवेयर बेच रहा है, उसका पैसा डाला था। चलो ठीक है, क्रैक सॉफ्टवेयर बेचा, मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने तुमको अच्छा आदमी समझा कि तुम ये सोचोगे कि चलो ठीक है। मैंने इसलिए नहीं बेचा कि मुझे क्रैक सॉफ्टवेयर, मैंने हमेशा ये बोला था कि मैं आपको अपना कोर्स बेच रहा हूं, क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहा हूं। लेकिन क्योंकि आपके पास औकात नहीं थी सॉफ्टवेयर खरीदने की 18,000 रुपये की, तो आपको मैंने कहीं से जैसे तैसे सॉफ्टवेयर अरेंज करके दिया। लेकिन आपने उसमें बाद में इल्ज़ाम लगाया। अब आगे सुनिए क्या हुआ।
उसके बाद कहते क्या है मेरे से, एक का कॉल आया, 3 महीना हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, और मैं हमेशा से बोलता था कि देखिए मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट करके रखो, अगर असाइनमेंट कर लोगे तो मैं आगे असाइनमेंट दूंगा। अब एक बात आप सिंपल सी बताओ, मैं तो अपनी क्लासेस दे रहा हूँ ना, मैंने आपको वीडियो कोर्स दिया, असाइनमेंट दिया, अब जब आप असाइनमेंट करोगे तभी तो मैं अगला असाइनमेंट दूंगा। इन्होंने क्या किया, इतने ये चोर थे, ये क्या करते थे कि असाइनमेंट देता था, 10-10 दिन तक असाइनमेंट नहीं आ रहा मेरे पास, और मैं ग्रुप में हमेशा डाल देता था अगर असाइनमेंट नहीं आ रहा है तो मेरी कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है, असाइनमेंट नहीं आएगा। असाइनमेंट करना बहुत मुश्किल था भी नहीं, लेकिन कौन बैठे कौन करे, कौन साला सर खपाए 5,000 रुपये चक्कर में। अभी 60,000 रुपये लेते तो बैठ के करते। अब सुनना ध्यान से, इन्होंने क्या किया मेरा कि मैंने इनको असाइनमेंट दिया और असाइनमेंट उन्होंने नहीं किया, ठीक है, और मैं ग्रुप में डालता गया कि भाई देखो असाइनमेंट, और लोग समझते भी गए, जो समझदार था वो समझ गया भाई मेरी गलती है, मैंने असाइनमेंट नहीं किया। फिर एक हफ्ते बाद मैंने ग्रुप में डाला, असाइनमेंट नहीं आया है, फिर एक हफ्ते बाद मैंने ग्रुप में जानबूझ कर डाला था, मुझे पता था ये होने वाला है, आगे अंदर से मेरे को वाइब आ जाती है। 3 महीना हो गया, सर्टिफिकेट देने की बारी आई, मैंने कहा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जब आप लोग कर ही नहीं रहे हो तो सर्टिफिकेट कहाँ से दे दूंगा मैं। तो इन 5 लोगों को मैंने सर्टिफिकेट नहीं दिया। इन लोगों ने क्या कहा कि ग्रुप में पारसिंह चोर है, पारसिंह चोर है। ठीक है भाई, मैं भी ग्रुप में आया, पहले तो मैंने ग्रुप छोड़ दिया, फिर मैंने एक मेरा फ्रेंड था उससे ग्रुप ज्वाइन करवाया, वो भी था मेरे साथ में। तो मैंने कहा भाई क्या बात हो रही है, तो कह रहा आपने मेरे साथ ये किया। मैंने कहा एक काम करो, कुछ कोर्स मैंने एक्सटेंड कर दिया 1 महीने के लिए, फिर वही किया इन्होंने, फिर असाइनमेंट दिया, फिर नहीं किया, फिर 1 महीने बाद मेरे को बोलते हैं कि भाई ये चोर है। क्या चाहते हो मेरे से तुम, कि मैं तुम्हारे लिए आके तुम्हारा प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर सीखूं? क्या कर चाहते हो? मैं तो अपने लिए सीख सकता हूं ना। एक बात हमेशा याद रखना, जो 50 लाख रुपए का रसल बंसन का कोर्स है ना, उसमें भी मैंने देखा है कि वो बताते हैं सिर्फ कि ऐसा करना है, टीम हेल्प करती है, कोई कुछ पूछना आप आके पूछो, करना तुमको है। तुम साले हरामी हो, तुम कामचोर हो साले, तुम्हारे अंदर हरामखोरी घुसी हुई है, तुमको बैठे बैठे चाहिए, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो उस दिन मैंने एक चीज रियलाइज करी। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूं क्या हुआ। इतना इन लोगों ने मेरा टॉर्चर कर दिया कि मैंने 3 लोगों का रिफंड कर दिया पैसा। तो उसमें मेरा कोर्स भी चला गया, पूरा लिंक्स थे उसमें, सारे कोर्स भी ले गए वो लोग। 24 वीडियो का कोर्स था, 25 वीडियो का, वो ले गए, और सॉफ्टवेयर भी ले गए। और उसके बाद बोलते क्या है कि आप क्रैक बेचते हो। बताइए, ये मेरे, और सिर्फ इस वजह से कि ये लोग गुस्सा किस वजह से थे कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हम नहीं सीख पाए। अरे तो क्यों नहीं सीख पाए? तो बोलता मेरे को कोरोना हो गया, कोई कह रहा था मेरे को ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा कोरोना हो गया, आपने बताया कोरोना हो गया। कोरोना कितने दिन का होता है? 20 दिन का कोरोना होता है। उसके बाद तो क्या हुआ, असाइनमेंट क्यों नहीं हो रहा है? कोरोना तो अभी आया, 2 महीने पहले क्या हुआ था? कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरीके की चीजें होती थी। और उस दिन मैंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आया था, और इतना मैं उस दिन मैं परेशान हुआ, मैं सच बताऊं, मैं 3 दिन तक बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं क्या करूं। मैंने वकीलों से ही बात करी, मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं लोग। वकीलों ने कहा कोई पैसे से देने की ज़रूरत नहीं है वापस, लेकिन मैंने दे दिया। 5,000-6,000 रुपये का बिजनेस, मैंने 6,000 का कोर्स लिया था इन्होंने, मेरे 3 महीने, और मैंने 3,000 रुपये रिफंड किए सबके, 3,000 रुपये। ये था मामला, आप समझ लीजिए। इस लेवल पे खून खौलता है मेरा, इस लेवल पे ये लोग कामचोर हैं। अब क्या होता है, ये इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपए, इनको चाहिए 100 करोड़ की वैल्यू, वो नहीं हो पाएगा। 100 रुपए तुम दोगे तो तुमको हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं या कुछ ऐसा दे सकते हैं कि तुम्हारी A to B, B to C प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके आगे प्रॉब्लम हम नहीं। अब जैसे मैं मेडिटेशन कोर्स बेचता हूं, मैं बोल दूंगा ऐसे मेडिटेशन करो, वैसे मेडिटेशन करो, आप आते हो कहते हो हमें तो शांति मिली नहीं, हमें तो शांति नहीं मिली। अरे भैया, मैं सिर्फ बता सकता हूं, मैं आपके अंदर घुस नहीं सकता मेडिटेशन कैसे करना है। मैं सिर्फ बता सकता हूं, कुछ भी आप मेरे को 100 करोड़ दे दोगे मैं बता दूंगा। आप पहाड़ों पे आओगे ना, मैं क्या कर सकता हूं मैक्सिमम, आप मेरे को 100 करोड़ दोगे ना, 1 करोड़ रुपए दोगे, आपको मैं क्या करूंगा, बुलाऊंगा तिब्बत के पहाड़ों पे या ऋषिकेश के पहाड़ों पे, कहीं पहाड़ों पे बुलाऊंगा। मैक्सिमम आपको मैं एम्बियंस दे सकता हूं, एक होटल दे सकता हूं, एक हॉस्टल दे सकता हूं, एक अच्छा खासा सर्वेंट दे सकता हूं, खाने पीने की सुविधा, टॉयलेट, ये सब दे सकता हूं। लेकिन आप बैठ के मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, बैठ के सोशल मीडिया चला रहे हो, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है।
वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और यही हुआ बाद में जब मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए, ब्रंसन के, फ्रैंकन के, मेरे पास सारे कोर्सेज हैं। तो उन्होंने बताया मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी उनके अंदर कि सब सिखा रहे हैं, लेकिन रसल ब्रंसन सिर्फ सिखा रहा है, आके तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेगा नहीं वो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है। तो डोंट वर्क विद इडियट पीपल्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग विच आई कैन टेल यू कि दीज पीपल आर लाइक खटमल। एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, स्प्लेंडर पीपल आर रियली नाइस, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ओनली, बट देर आर पीपल हु आर रियली, जिनके लिए 5,000 नहीं है, वो 5 लाख है, वो 5,000 की वैल्यू नहीं है। और अगर आप उनसे 5,000 ले लेते हो तो वो कहीं ना कहीं दोष आपको ही देंगे। तो डोंट टेक मनी फ्रॉम दीज पीपल खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, आप उनसे पैसा ले रहे हो और ये इमोशनल होकर पैसा देते हैं। सो डोंट डू दैट, ओके, बिकॉज मैंने देखा और मैं आई वॉज गोइंग टू अ लॉट ऑफ इट्स लाइक अप्स एंड डाउन्स एट दैट टाइम, a lot of ups and downs, because what can I do as a coach? I can't practice for you. I just cannot do that. I just can't do that. So there are different kinds of business. In coaching businesses, this is a very great business. Fatty liver business is a great business. But let's say there is a business for doctors. Let's say there is a surgery. I'm a surgeon. So I can perform surgery for you. यू डोंट हैव टू डू, आपको एनेस्थीसिया देंगे, आप लेट जाओगे। अब आप स्प्लेंडर के हो, आपके पास साइकिल है, आप स्प्लेंडर वाले हो, आप पल्सर वाले हो, आप प्लैटिना वाले हो, मुझे नहीं पता, आप रिक्शे वाले हो, कोई मतलब नहीं उससे, आप लेटो, हम आपके लिए काम करेंगे। ये एक तरीके का बिजनेस है जो बढ़िया बिजनेस है, जहाँ पे हम आपके लिए डन फॉर यू सर्विसेज करते हैं। लेकिन कुछ बिजनेसेस नहीं हो सकते हैं ऐसे नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते भाई, नहीं हो सकते, सॉरी। तुम मेरे को सब कुछ दे दोगे ना, मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए अभ्यास। ये एक बहुत ही ज़रूरी रूल है, ये एक अमीरी का बहुत बड़ा रूल है। हर कोई अमीर नहीं हो सकता। जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है, जो परिश्रम करता है ना, उसी को सिर्फ फल मिलता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, अब आप कहोगे मैं आपके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करूं? आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट इसलिए करोगे क्योंकि मैं आपका 10 साल बचा लूंगा और वो 10 मिनट में करवा दूंगा मैं। भाई मैंने जो कुछ भी सीखा वो 4 साल में सीखा। आज जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 10 पॉडकास्ट में, अगर आप ये सिर्फ 10 पॉडकास्ट सुनो ना, तो आपको इतनी एक्सट्रीम हाई वैल्यू मिलेगी इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं बुलशिट बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये जो भी मैंने बातें करी है ना, ये 50-50 करोड़ के कोर्सेज में बात होती है। 50-50 करोड़ के कोर्सेज में इस तरीके की बात होती है कि डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक क्लोजेस क्या होते हैं, कॉपी राइटिंग क्या होती है, फॉलोअप्स कैसे करें। अरे बाप रे बाप, आप क्या बात कर रहे हो। मैं एक ऐसी चीज़ आपको दे रहा हूं ना, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, और आप सुनो सिर्फ एक आदमी से कि भाई ऐसा करना है, मैं आपको बता सकता हूं, मैं उसका पैसा चार्ज कर रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, आपके जो टाइम है वो बचा रहा हूं, आपकी जो मेहनत है वो बचा रहा हूं, उसका पैसा चार्ज कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि 5-6 हज़ार रुपये देके मैं आपके लिए काम करूं, तो इंडिया में आपकी ऐसी सोच हो सकती है, अगर आप ऐसा ज़्यादा करोगे ना, मैं इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे नहीं रहना ऐसे देश में भाई, मैं सोच भी रहा हूं ये चीज़, मैं नहीं रह सकता ऐसे लोगों के साथ। कोई मतलब किसी प्रकार की कोई मेहनत ही नहीं। आप देखो सरकार से नौकरियां मांग रहे हैं लोग, आप क्या बात कर रहे हो यार। कोई कैसे नौकरी जनरेट करेगा, कैसे जनरेट करेगा नौकरी यार कोई तुम्हारे लिए? जब बिजनेस ही नहीं है तो नौकरी कहां से आएगी? सरकारी नौकरी लिमिटेड है, पुलिस की नौकरी लिमिटेड है, कितने लोग आ जाओगे? 250 लोग की भर्ती होनी, 2.5 लाख लोग बैठे हुए, क्या करोगे बाकी लोग? नौकरी चाहिए, नौकर बनना है, नौकर बनना है, ठीक है नौकर बनना है, मैं मानता हूं नौकर बनना है। बिजनेसेस तो है ही नहीं, बिजनेसेस तो है ही नहीं भाई। नौकरी कौन देता है? बिजनेस देता है, कॉर्पोरेट देता है और सरकार देती है। अगर हम सरकार नौकरी तो है ही नहीं, वो तो मिलेगी नहीं आपको, छोड़ो हटाओ, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस है। मैं प्राइवेट नौकरी की बात करता हूं। तो आपको बिजनेसमैन बनना चाहिए भैया आपको लेकिन नहीं, हमें तो नौकरी चाहिए भाई। क्या ये फिलॉसफी है? ये क्या कैसी कंट्री है ये भाई? ये कोई फिलॉसफी है कि मुझे नौकरी चाहिए? ही नहीं, कहां से दे दें नौकरी का? पहले देखो नौकरी की जड़ क्या है, बनती कैसे है नौकरी, कौन देता है नौकरी? नौकरी बिजनेस देता है,
बिजनेस करने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, पैसे की फ्रीडम देता है। आप दुबई में बैठ कर लेमनेट पी सकते हो, आप स्विट्जरलैंड जा सकते हो, अपनी वाइफ को लेके जा सकते हो, बच्चों को ट्रैवल करवा सकते हो, आप फ्री हो सकते हो, दुनिया के बारे में सोच सकते हो, अपने डिज़ायर्स को आप व्यक्त कर सकते हो, जो आपके अंदर भरे हुए डिज़ायर्स हैं उनको निकाल सकते हो। ये है बिजनेस, पावर ऑफ बिजनेस। 90-60-70% लोग इस दुनिया में जब मरते हैं तो उनके पास विशेष रहती है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्यों नहीं हो पाता? पैसा ही नहीं, देयर इज नो मनी इन्वॉल्व्ड। सो ऑलवेज वर्क विद योर कॉन्सेंट्रेटेड ड्रीम कस्टमर, अंडरस्टैंड दिस। आपकी बोली समझने वाले एक दो ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा ना तो 1 लाख लोग जाएंगे, 1 लाख। बस आपको 1 लाख कस्टमर्स चाहिए, और आप शुरू में 1 लाख मत सोचो, 1000 सोचो। 1000 आपको ऐसे लोग जो आपको जो कुछ भी आप बेचोगे वो खरीदने के लिए रेडी हैं, ऐसे लोगों को कलेक्ट करना है। हो गया काम आपका। मेरा आगे फ्यूचर में जो गोल है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मिशन जो है मेरा, तो अभी तो मैं वोकल कोचिंग बिजनेस में हूँ, मैं वोकल कोचिंग कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट बिजनेस मैं ग्रो करूँगा उसमें कॉन्सर्ट बिजनेस होगा। मतलब क्या, जैसे कि मुझे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स करने हैं, मेरा फ्यूचर वही है। और उसको मैं कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ। 1000 फैंस मुझे चाहिए, 1000 लोग चाहिए बस। जब मेरे कॉन्सर्ट पे लोग आएंगे तो 1000 लोग होंगे वहाँ पे शुरू में, बाद में 6-7 हज़ार, 10 हज़ार, 30-40 हज़ार भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन 1000 लोग से चालू करूँगा। मुझे 1000 ऐसे लोग चाहिए जो एक्चुअली मेरे को सुनने आ रहे हो, मेरे को सुनने बैठे, वैसे लोगों के साथ काम करना है मुझे, कॉन्सर्ट्स करना है। हो गया काम, डन, राइट। सो वो कैसे होगा? फनल्स के थ्रू, सब कुछ उसी से होगा जो भी होगा। बट एनीवे, लेट्स नॉट गो ऑफ ट्रैक। Retargeting. You focus on those people who have left out the website. Retarget them through the ads, and then retarget also from the email follow-ups. ईमेल से भी आप फॉलोअप कर सकते हो। ये 2 चीज़ें होती हैं। फॉलोअप कैसे करना है? वैल्यू एंड CTR, क्लिक थ्रू बटन, वैल्यू एंड CT, वैल्यू एंड क्लिक बटन, ठीक है, दैट्स इट। कुछ भी वैल्यू दीजिए और नीचे बटन दबाइए, कुछ भी वैल्यू दे, बटन दबाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अपने आप धीरे धीरे लोग आपसे खुश होते जाएंगे, आपसे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। विल मे बी टॉक अबाउट वेबिनार फनल्स इन द नेक्स्ट दिस थिंग। टेक केयर, बाय।